Dear students, this is Dr. Archana Tiwari, Assistant Professor in Department of Business Administration, SPC Government College Ajmer. Factors affecting the choice of channels of distribution is the topic which we are going to discuss today, and this is related with your paper Marketing Management of BCom Part 3rd. Now, if we talk about the choice of channels of distribution in marketing, in this everything we need to know about factors influencing choice of distribution channel. Deciding or selecting channels of distribution is a strategic decision for any manufacturing or trading concern. The choice of channel depends on various factors. Usually, manufacturers consider which distribution channel would be objective and efficient because it depends upon the nature of the manufacturing company. The selected channels must have lowest cost with the maximum overall profit. It should also be remembered that there is no single channel of distribution that will always result in optimum profit. The integrated marketing concept has promoted many manufacturers to employ several kinds of channels. जैसे कि हम जानते हैं कि जो वितरण वाहिका है यानी कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो कोई भी एक नहीं हो सकती है, बल्कि डिपेंड करेगा कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या ट्रेडिंग कंपनी कैसी है। उस बेसिस पर किसी भी निर्माता को चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का सिलेक्शन करना पड़ता है, क्योंकि अगर सिंगल चैनल लेते हैं तो हो सकता है कि उसका रिज़ल्ट प्रॉफिट में ना निकले, या एक से ज़्यादा चैनल्स मल्टीपल चैनल्स कंपनी के द्वारा लिए जाते हैं तो हो सकता है उसमें लॉस हो जाए। तो एक बैलेंस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाहिए जिससे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सके, और इसके लिए कुछ घटकों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे कि ये हम देखेंगे, ये जो हमारा लेक्चर है इसमें कि कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करते हैं। एक हो सकते हैं मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स हो सकते हैं, प्रोडक्ट फैक्टर्स हो सकते हैं, कंपनी फैक्टर्स हो सकते हैं, चैनल रिलेटेड फैक्टर्स हो सकते हैं, या एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है गुड्स का, हर एक चैनल का अपना अपना एडवांटेज हो सकता है, लिमिटेशन हो सकता है, और हर एक कंपनी इसको चूज़ करने के लिए डिफ़िकल्टी भी फेस कर सकती है। और यह जो निर्णय लिया जाता है वो निर्णय कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और ये जितने भी फैक्टर्स अभी मैंने आपको बताए हैं 5 फैक्टर्स अभी पहले, इनको एक एक करके सबको कंपनी को स्टडी करना पड़ता है, उसके बाद में एक डिसीजन कंपनी को लेना पड़ता है। अब चूँकि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जो हैं मार्केट में चलाए जाते हैं, तो मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहला फैक्टर हम लेते हैं मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स। द फॉलोइंग आर द मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड। कस्टमर्स होने चाहिए सबसे पहला। द अल्टीमेट पर्पज़ ऑफ एनी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ टू डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स टू द कस्टमर्स। Therefore, the requirement and the nature of the customer should be considered while deciding the channel of distribution. If the customers are widely scattered, the channels must be in a position to reach them out effectively. This requires appropriate channels, but if the customers are not widely scattered, smaller channels would be sufficient. If the customers are very large in number, such as individuals vary, different channels of distribution will be necessary. But if the customers are small in number, अगर customers छोटे हैं संख्या में, तो large quantities के लिए बड़ा चैनल बनाया जाना मुश्किल होगा। As the industrial purchase, small channels or even direct distribution will be sufficient, क्योंकि निर्माता स्वयं ही उपभोक्ता तक माल पहुंचा सकता है।
इसी तरह मार्केट में हम देखते हैं कंपटीशन होता है. वन हैज़ टू कंसिडर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अरेंज्ड बाय द कॉम्पिटिटर्स. दिस चॉइस रिप्रेजेंट द विजडम एंड एक्सपीरियंस ऑफ द कॉम्पिटिशन. इट ऑल्सो मीन्स दैट द कॉम्पिटिशन have been successful in using such channels over the long run. A company can adopt such channels of distribution if found suitable to itself. Unless there are compelling reasons, a company should not try to change the pattern of distribution as compared with that of the competition. One has to make study of the existing channel of distribution. इसी के साथ में प्रोडक्ट फैक्टर भी आ सकता है. प्रोडक्ट को ही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, तो प्रोडक्ट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी एनालाइज किए जाने चाहिए जब भी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाती है. और हर एक प्रोडक्ट का जो है अलग अलग नेचर हो सकता है, और अलग अलग नेचर होने की वजह से प्रोडक्ट के फीचर्स अलग हो सकते हैं, और डिफरेंट टाइप के चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी इसमें उसी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किए जाने चाहिए. The following product factors have to be considered. पहला आता है पेरिशेबिलिटी. जैसे कि पहला हमने मार्केट फैक्टर देखा, उसी तरह सेकंड प्रोडक्ट फैक्टर हमारा यहाँ आता है, तो उसमें पेरिशेबिलिटी देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है. कुछ प्रोडक्ट ऐसे हो सकते हैं जो कि बहुत ही नाशवान हो सकते हैं, तो उनके लिए जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत छोटा होना चाहिए ताकि डायरेक्ट कस्टमर तक ईज़िली उस प्रोडक्ट को पहुंचाया जा सके. क्योंकि यदि लॉन्ग चैनल्स होंगे डिस्ट्रीब्यूशन के तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ़ इंटरमीडिएटरीज होंगे, मध्यस्थ ज़्यादा होंगे, और मध्यस्थ ज़्यादा होने की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन जो गुड्स का है वो डिले हो जाएगा. जैसे कि मिल्क है, फ्लावर्स हैं, बहुत जल्दी ख़राब होने वाले पेरिशेबल आइटम्स हो सकते हैं. इनके लिए चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन छोटा होना चाहिए. इसी के साथ में नेचर ऑफ प्रोडक्ट देखना ज़रूरी है, क्योंकि कस्टमर का गुड्स जो परचेज़ कर रहा है कंज्यूमर, वो किस तरह का परचेज़ कर रहा है. लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल अगर कर रहे हैं तो फिर अलग तरह का चैनल होगा, और जहाँ पर कि ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि लॉन्ग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चाहते हैं, उनके लिए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट भी अवेलेबल होना ज़रूरी है. इसी तरह से द प्रेजेंट ऑफ रिटेलर इज़ अ मस्ट. इंडस्ट्रियल गुड्स ऑन द अदर हैंड एंड परचेज्ड इन लार्जर क्वांटिटीज़ बाय स्मॉलर नंबर ऑफ परचेजर्स इन लेस. टेक्निकलिटी भी ज़रूरी है इसमें देखना कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें कि टेक्निकल नेचर होता है, जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर हो सकता है, मेडिकल डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स हो सकते हैं. तो ये कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए कि कंपनी को सोचना पड़ता है कि कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाए. जैसे कि एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिया है, रेडी टू वियर गारमेंट्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय लॉन्गर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और इट कैन ऑल्सो बी लाइक डन थ्रू एडवर्टीज़मेंट. सीजनलिटी प्रोडक्ट के लिए देखना ज़रूरी है कि कौन सा सीज़न है, वैरायटी कौन कौन सी ऑफ़र की जा रही है उसके लिए, साथ ही साथ यूनिट वैल्यू क्या है, कंपनी फैक्टर्स थर्ड इम्पॉर्टेंट एक होता है जो कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को सेलेक्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. तो कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है, कंपनीज फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट for existing channel of distribution, because establishing a new channel of distribution requires huge amount of money. इसी के साथ में the extent of control desired, reputation of the company भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है ये भी, क्योंकि एंथुजियास्टिक या विलिंग जो होते हैं उनके साथ तो स्ट्रॉन्ग कंपनीज काम करने में तैयार रहती हैं. कंपनीज मार्केटिंग पॉलिसीज़ क्या क्या हैं यह भी देखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात हो सकती है. पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है कंपनी में, जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो किया गया था उसके अकॉर्डिंग. और कंपनी विल ऑल्सो हैव एक्सपीरियंस इन मैटर्स ऑफ डीलिंग विद सच चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन.
A company should consider such past experience while deciding the channel of distribution. चैनल रिलेटेड फैक्टर्स भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चूजिंग शुड बी अप्रोप्रिएट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द कंपनी. These channels must be examined and then a proper choice must be made. The following factors of the channel must be considered. Number one is the ability of the channel. क्या एबिलिटी है चैनल, कितना काम में लिया जा रहा है, कंपनी क्या इसके लिए कुछ और काम कर रही है. साथ ही साथ द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द चैनल. फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द चैनल शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड एबिलिटी टू प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विसेज भी इसमें इम्पॉर्टेंट है. एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी कंसीडर करने चाहिए. और एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो फिफ्थ पॉइंट है उसमें हम देखते हैं इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है. कंपनी की इकोनॉमिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करना चाहिए कंपनी को कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा. लीगल फैक्टर्स हो सकते हैं. देयर आर सर्टेन लीगल फैक्टर्स विच मस्ट बी कंसिडर्ड वाइल डिसाइडिंग channels of distribution and arrangements with items. Certain types of arrangements with the channel of distribution in the form of sole distributionship and in the course of in the cases of certain essential commodities may be objectionable under law. इसी तरह से फिस्कल स्ट्रक्चर क्या है कंपनी का उस पर भी डिपेंड करेगा. इट रेफर्स टू सर्टेन इनडायरेक्ट टैक्सेस levied by the state government on products. There is no uniformity in this matter and clarify is absent in certain cases. Therefore, such matters must also be considered while deciding a channel of distribution for the company. तो इस तरह से हमने देखा कि अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जब भी कोई कंपनी सेलेक्ट करती है तो उसको प्रभावित करने वाले हो सकते हैं. और इन सब को ध्यान में रखते हुए जो 5 फैक्टर्स हमने देखे हैं इनको ध्यान में रखते हुए कंपनी को अपना चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट करना चाहिए.